you have received the same award. Last year when I was here, I was doing the anchoring job. At the same time, I found the same guy. And once again, he is available with the same work. It means slow and steady wins the race. If you want to win the race, you have to be continuous. And that is why, at last, I just want to ask a very, very simple question. What you want to become in your future? Sir, I want to become an IAS officer in my school. Wish you all the very best. God bless you. सर आप बीच में हेलो आप आगे थोड़ा सा Congratulations. Currently you have me here. You glorified areas, and once again you proved that you deserve, you have that potential. On behalf of that, you can perform very well. Finally, the same question goes to you. What do you want to become? I want to become an IAS officer in my future. Firstly, I would like to thank my whole KTS family who has supported me on the every path of my life to achieve this award. And personally, respected Principal Sir, Mr. Rameswar Prajapati, who has improved my strength in mathematics and science. Thank you so much. God Very bless many you. thanks. Why you want to become an IAS officer? So I want to serve my country as a IAS officer to improve. There is so many corruption in our country. So I want to defeat that corruption. So all the best for your future. God bless you. पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह। किस्मत की जंग लगे दरवाजे को खोलने में वक्त लगता है। So I would like to call Atal Singh for the big performance of the year. मैं करूंगा कि वे मंच पे आए और इस अवार्ड को देने के लिए मैं श्री विद्या सिंह जी ग्राम प्रधान बारी गाँव से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और ये पुरस्कार देकर इन बच्चों के उत्साहवर्धन को, इनके जोश को बढ़ाएं ताकि ये अपनी एम और डिजायर को भविष्य में प्राप्त कर सकें। अथर्व सिंह प्लीज कम ऑन द स्टेज, वी देवर पापा एंड मम्मी। This year you received this award. At last, finally, I just want to put up a very, very simple question. What you want to become in your future? Sir, I become in the future doctor. Actually, one more thing, very good thing I saw in him. While ma'am was coming on the stage, he went to that place. So that was the essence. God bless you. Thanks, sir. I'm happy with everything. Actually, first of all, in this beautiful afternoon, I would love to convey my cordial wishes from the bottom of my heart, wholeheartedly, and wishing you all a very good afternoon. Exactly, today we are gathered here just for a very particular purpose and particular cause. But before proceeding, before going ahead, I just want to have a few words. बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है
बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत जी चाहता है इस कहने जहां से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। Exactly, fully, entirely, and wholly. Very thankful to the founder of KDS, because in this afternoon I'm missing him. 1 year before, when he was here, at the same time he asked me the questions: have you had your lunch or not? Have you taken your dinner or not? Are you okay? Are you fine or not? That was the question, and that was the question from the father. But today he is not available. But the memory is still here. And if I talk about education, education requires a lot of sacrifices. Because sometime before, one of my friends, he was here, one of my colleagues was here, and he was talking about the challenges. Challenges, there is nothing, there is no problem at all for a human being. You are the best creation, because sometime before when I was standing over here, at the same time I told you about that, you are the strongest creation, you are the best creation. This request for everyone, if you want to send your kid anywhere, just have a look, just check out at a week, like in a week, just check out what is going on exactly. Sorry to interrupt you, Madam Sir. Please, your time is over, so I would like request to finish your lecture. Thank you so much. I need to stop, I need to take a break. And there is a message for you. Otherwise, की गहराइयों से निकल आते हैं वो समस्याओं की गहराइयों से जिनकी हादसे में गजब की जान होती है। वही होते हैं असल में हर सफलता के काबिल मिलने वाली बधाई उनकी शान होती है। सभी छात्र छात्राएं जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर का। Give a big hand for each other. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, इस नगर पंचायत के आदरणीय चेयरमैन साहब, इस विद्यालय के प्रबंधक ही नहीं, हमारे प्रेरणा के स्रोत आदरणीय उपाध्याय जी, इस विद्यालय के प्राचार्य, हम सबके गुरु आदरणीय प्रजापति जी, इस विद्यालय के समस्त अध्यापकगण, दूर दूर से आए सभी अभिभावकगण, बहनों भाइयों, मैं यहाँ के केटीएस के पूरे परिवार को अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि मैं एक ऐसा अभिभावक हूँ जो हम लोगों की एक सोच थी। कभी कभार हम लोग बैठते थे, आपस में चर्चा करते थे, आदरणीय उपाध्याय जी, रिजवान जी, ललन जी, डॉक्टर साहब,
तमाम हमारे अध्यापक गुण बैठे हुए हैं, हमारे बड़े आदरणीय जगदीश वर्मा जी, एक ऐसे विद्यालय की स्थापना किया जाए कि जो हम सबके क्षेत्र के बच्चे कोटा के अंदर, दिल्ली के अंदर जाते हैं, उनकी वो शिक्षा दीक्षा का काम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाया जाए जो यहीं पर हो। और काफी दिनों के मंथन के बाद आदरणीय उपाध्याय जी के जिह्वा पर मां सरस्वती विद्वान हुई और उन्होंने निर्णय लिया। हम सबका पूरा सहयोग है। अभी हिंदी के गुरुजी ने अपनी आप बीती सुना रहे थे। निश्चित ही गुरुदेव जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। आप आदरणीय कलाम जी को पढ़ें, आदरणीय बाबा साहब को पढ़ें, तो इतनी आसानी से उन लोगों ने इतनी ऊंचाइयों को नहीं छुआ। बड़ा ही संघर्ष जीवन में था। मैं एक अपने बच्चे को एक डॉक्टर साहब के पास दिखलाने को ले गया। बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, गोरखपुर के टॉप डॉक्टरों में उनकी गिनती होती है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने हमसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने बताया मैं फला जगह से आया हूँ। उन्होंने पूछा कि आप जुएठा देखे हैं। हमने हंस दिया, डॉक्टर साहब आप जुएठा के विषय में पूछ रहे हैं हमसे। उन्होंने हमको उत्तर दिया, बाबू जब हम पढ़ते थे तो उस समय मैं एक तरफ मेरे पिताजी हर पकड़ते थे और दूसरी तरफ एक बैल था, एक तरफ मैं था। इतनी कठिन परिस्थितियों में पढ़ करके मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मेरा लड़का यूएसए में डॉक्टर है। निश्चित ही जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। और प्यारे बच्चों, आप निरंतर संघर्ष करिए। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है आपको, उसको प्रतिदिन आप कंठस्थ करिए, मेहनत करिए। हमारी शुभकामना है आपको कि आपका जो लक्ष्य है, तमाम बच्चों के मुंह से मैंने सुना, कोई आईएएस बनने का सपना देख रहा है, कोई सिंगर बनने का सपना देख रहा है, किसी के मन में कुछ है, किसी के मन में कुछ है, और वो सफलता हासिल होगी। इस केटीएस परिवार को बहुत बहुत शुभकामना कि आज उनके इस जो गुरु हमारे यहाँ पर जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसी ललक भरा हुआ है बच्चों के अंदर कि बच्चे अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर सहयोग कर रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए इस पूरे परिवार को, शिक्षक परिवार को, यहाँ के बच्चों को, अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिक्षक, जय भारत।
हेलो, ये नन्हे मुझे बच्चों के द्वारा इनके हौसला को बढ़ाने के लिए आपने सहयोग किया। मैं छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा इतनी बेहतरीन प्रस्तुति रिया के अंकल के द्वारा भी 100 पीस का पुरस्कार आवनी एंड स्नेहा कम एंड निशे। थैंक यू सो मच। This opportunity towards the program. इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। ना कोई अरमान रखती हूँ, ना कोई फरमान रखती हूँ। तरजीब से सुनो तो सुनने वाला आप लोग का सम्मान करती हूँ। Hello everyone, I am Sandeep Upadhyay studying in class 7th. Well, I am Ishita Padha from 9th standard. Once again welcoming you all for the second KTS annual award ceremony. So please welcome. So I am welcoming you all for second annual KTS annual award ceremony. I feel it's my right choice to study in KTS because KTS delivering a very good quality of education. My ambition is to becoming an IAS officer in future. So my teachers are supporting and giving a very good quality of knowledge about civil services exams along with my academic studies. I am very thankful for that. All the best, Tanvi, for your future and ambition. Thank you, my friend Vishta. To extend this program, I would like to call Alok Prajapati for from Puri Pana Hame Hame Rakhna. So please give a very big hand for Alok Prajapati.
respected principal sir, teachers, chief guest, and all my dear friends. Today I am standing in front of you to deliver a poem on unemployment in Hindi. Start. होके MA BA पास, रखकर 2 दिन का उपवास, एजुकेशन को लगा साफ, बेरोजगार ढूंढे जॉब। और वोट बैंक के भूखे लोग लगा रहे डिग्री का बोझ, जवानी चबा रहे उम्र साथ में बढ़ा रहे। 35 से ऊपर लड़का, लड़की 30 से ऊपर ब्याह रहे। ऐसे हो रहा युवाओं का विकास, होके MA BA पास, रखकर 2 दिन का उपवास। अब मैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। देश की अर्थव्यवस्था कहे एक बात सच्ची, इन बेरोजगारों की हालत भिखारियों से अच्छी। डिग्री नहीं है हाथ में कटोरा, चाहे छोरी हो या छोरा। सबके पास कटोरे जितना ज्ञान, सरकार ने दी नहीं पहचान। अब योग्यता को कटोरे से आस, होके MA BA पास, रखकर 2 दिन का उपवास। नौकरी मिले ना छोकरी, कर रहे डिग्री की चाकरी। छोकरी करे ना शादी, उम्र हो गई उसकी भी आधी, बच्चे कह रहे दादी। ऐसे शादी रोक रुके आबादी, ऐसा सरकार का विश्वास, होके MA BA पास, रखकर 2 दिन का उपवास। जय हिंद जय भारत। हार्ड वर्क करने के बाद ये मेडल को इन लोगों ने हासिल किया। ये मेडल KTS का नहीं है, ये मेडल इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड जो एग्जामिनेशन कराता है वहाँ से आया हुआ है इन बच्चों के लिए। साइंस ओलंपियाड की तरफ पे जो इंटरनेशनल लेवल पर 94 रैंक इन लोगों ने हासिल किया था। इसके बाद ये जो भी अवार्ड पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे KTS के नहीं है, ये साइंस इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशन के तरफ से है। अब मैं कुछ चंद पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माता के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं, माता के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं, और आपकी तालियां किसी अभिनंदन से कम नहीं। इतना सुनकर के अगर आप बजा दे ताली, तो मुझे ऐसा लगेगा मेरा प्रयास किसी बंधन से कम नहीं। It is a beautiful afternoon and I am interested to introduce myself. I am Sridhan Pandey from class 7. And I am Yashwardhan from class 7. We warmly welcome to our honorable chief guest, honorable president, honorable director sir, honorable president and honorable teaching staff. So I would like to call my elder brother Aditya Verma for English speech. Once again, welcome back to you all. Good afternoon everyone.
Today, I have gotten this opportunity to talk on the importance of education. Education plays a very important role all through the year of everyone. Getting a proper education is Getting a proper education is very necessary to get success and a happy life. Just like a healthy body, healthy nutrition is required. It is important to live luxurious and better life. It develops personality of people, provides physical and mental standard, and transforms into living status. Good education is constructive in nature, which creates our future forever. It provides us a lot of confidence by providing a bulk of knowledge in many fields. It is a single and a vital way to success which can a man get in their life. We can grow or develop our life. Being well educated, it is not to earn only certificates and studies. It also means to have a good human and a social well-being in the life. In this consequence, our school life, I have a quotation. समुंदर भर सिलेबस है, नदी भर पढ़ते हैं, बल्टी भर याद आती है, चुल्लू भर नंबर आते हैं, जिसमें हम डूब जाते हैं. It helps us to determine whether something is good or bad for us. The first purpose of getting proper education is to take the decision which is correct for forever. We are incomplete without education. We are to thankful to our parents who did not think about themselves, but they always think about us, their children, how their children can be educated. In such a competitive world, education has become a necessity for human beings, just like food, clothes, and shelter. It provides solution to all problems. It promotes good habits, awareness to terrorism, corruption, and social issues among us. Education is the most tool of force, inner and outer, strength to everyone. Education is a fundamental right to everyone and capable of bringing any desired change and upliftment in society. And the last, I want to share a quotation, which is, if you lost wealth, nothing is lost. If you lost health, something is lost. If your character is lost, you lost everything. And our character is determined by how much we are educated. Thank you. Have a great day. Good afternoon everyone, my respected principal, director, teachers, guardians and all my brothers and sisters. Today I am Ayuddin from class 10 standing in the front of you to deliver a doha on corruption. So let's start. नेता से आशीष पा अवसर से अविरत नेता से आशीष पा अवसर से अविरत पौधा भ्रष्टाचार का आज हुआ बटु वृक्ष रे भैया आज हुआ बटु वृक्ष बिना भेंट पूजा नहीं खुश होते भगवान बिना भेंट पूजा नहीं खुश होते भगवान फिर गए वे खुद हो भला अधिकारी श्रीमान रे भैया अधिकारी श्रीमान पैसे में वह शक्ति है बजे फूंक बिन संग पैसे में वह शक्ति है बजे फूंक बिन संग फाइल पर पैसा रखो लग जाएंगे पंख रे भैया लग जाएंगे पंख रिश्वत के बाजार में बिके सभी आदर रिश्वत के बाजार में बिके सभी आदर अर्थ पर धर्म चूमता फर्ज रे भैया धर्म चूमता फर हर नोट की ओट में क्या क्या होती चोट हर नोट की ओट में क्या क्या होती चोट मुर्दा भी चल कर स्वयं डाल गया निज ओट रे भैया डाल गया निज ओट
बाबूजी तुम धन्य हो, कैसा किया कमाल। बाबूजी तुम धन्य हो, कैसा किया कमाल। मुर्दा पेंशन खा रहा, जिंदा नोचे बाल रे भैया, जिंदा नोचे बाल। रावण से भी है प्रबल जग में भ्रष्टाचार, उसके तो 10 सीट है, इसके 30,000 रे भैया, इसके 30,000। रखवाला ही हो अगर सबसे ज्यादा भ्रष्ट, रखवाला ही हो अगर सबसे ज्यादा भ्रष्ट। आम आदमी फिर भला किसे सुनाए कष्ट रे भाई, किसे सुनाए कष्ट। हे प्रभु मेरे देश का रखना तनिक ख्याल, हे प्रभु मेरे देश का रखना तनिक ख्याल। कहीं दलाली में इसे बेचे नहीं दलाल रे भैया, बेचे नहीं दलाल। थैंक यू। बेरोजगारों सुनो, अंधेरे से निकलने का प्रयत्न तो करो, अपनी स्थिति को मानकर कुछ शर्म तो करो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आगे बोलिए। ठीक, बहुत कब अच्छे। तक कोसते रहोगे तुम अपने इस सरकार को, क्या भुला दोगे तुम दुनिया के तिरस्कार को। ठीक, बहुत अच्छी बात है। इनके लिए एक जोरदार मंजिल तय करके हम अपना अध्ययन अध्यापन नहीं करेंगे, हमें पहुंचना कहाँ है यही हमें नहीं पता है, हमारी मंजिल क्या है अगर हम नहीं जानते हैं तो उस मंजिल तक हम पहुंचेंगे कैसे। सबसे पहले प्राइमरी स्तर से ही, प्राथमिक कक्षाओं से ही, जूनियर स्तरों से ही अगर हम अपने छात्र छात्राओं को, अपने बच्चों को हम कंपटीशन के तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, अगर उनको हम प्राइमरी स्तर से ही, जूनियर स्तर से ही सभी विषयों को अभी से ध्यान में रखते हुए, उनकी मंजिल को देखते हुए, उनके एम और एम्बिशन को देखते हुए अगर हम उनके विषय को, उनके पाठ्यक्रम को अभी से उनको हम सामने अगर हम प्रस्तुत करें तो निश्चय ही वह दिन दूर नहीं है जब आपका बच्चा, अगर आप कैलकुलेट करें चौथी क्लास से, मैं चौथी क्लास से नहीं कहूंगा, 5वीं क्लास से मैं कह रहा हूं, अगर क्लास 5 से अगर हम कैलकुलेट करें 12वीं क्लास तक, तो मेरा ख्याल 6-7 साल का टाइम हो रहा है। अगर इन 6-7 सालों में हम बुनियादी स्तर से ही अगर अपने बच्चे को उन सरकारी परीक्षाओं में, उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, प्यारे भागवतों में बता देना चाहता हूं, वे क्वेश्चन, वे गणित के प्रश्न, वे हिंदी के प्रश्न, वे साइंस के प्रश्न, वे तर्क शक्ति कहीं और के नहीं है, वो टोटल क्लास 5 के हैं। 6 में पढ़ने वाले बच्चों के सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें यूपीपी एग्जामिनेशन की, ढेर सारे बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में होने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेखपाल बनने के लिए दौड़ रहे हैं, वीडियो बनने के लिए दौड़ रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए दौड़ रहे हैं, बैंक में क्लर्क बनने के लिए दौड़ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन सभी प्रकार की परीक्षाओं में जो गणित के प्रश्न आते हैं सामान्यतः 10वीं स्तर के आते हैं। वही चक्रवृद्धि ब्याज, वही साधारण ब्याज, वही औसत, वही अनुपात समानुपात, वही साधारण ब्याज, वही सरलीकरण जो आपके बच्चे क्लास 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं,
उन्हीं से क्वेश्चन बैंक पीओ के एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप जरा सोचें किस तरह से आपका बच्चा 12वीं क्लास तक कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा कि उन एग्जामिनेशन में इन सब्जेक्ट से, इन टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, किस प्रकार से वो विद्यालय में अध्ययन किया। प्यारे भाव बंधुओं, मैं केटी स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस का प्रधानाचार्य होने का मैं बहुत गर्वान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि जो इस स्कूल के संस्थापक, इस स्कूल के प्रबंधक ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यभार सौंपा। उन्होंने मेरे सबका विचार साझा किया कि मैं एक ऐसी संस्थान का जन्म देना चाहता हूं इस कप्तानगंज की धरती पे, ताकि यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे को कोटा, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ तैयारी करने के लिए उनको न जाना पड़े। वे कप्तानगंज की धरती से जो है यहाँ से अपना एजुकेशन ले करके उन परीक्षाओं की तैयारी करके वो यहीं से आईएएस बने, वो यहीं से आईआईटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें, वो यहीं से नीट को क्वालिफाई करें। प्रत्येक प्रकार की सरकारी नौकरी को वह हमारे केटी स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस में अध्ययनरत होकर के उन परीक्षाओं को पास कर अपनी मंजिल को प्राप्त करें, ऐसा हमारे केटी स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस के संस्थापक डायरेक्टर की सोच है। बहुत अच्छा विचार है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सोच को लेकर के जो इन्होंने इस केटी स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस का जन्म दिया, इसके कप्तानगंज की पावन धरती पे जो है। प्यारे बंधुओं, मैं काफी दिनों से जो है एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को हम लोग देखते हैं कि उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उन प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ये बात सत्य है, 100% करेक्ट है कि अगर हम अपने बच्चों को आज तय कर लें, अपने दिमाग में हम रख लें कि अगर हम प्राइमरी स्तर से ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं में नौकरी पाने के लिए एग्जामिनेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे कहीं और के नहीं है, वे इन्हीं किताबों पे हैं जो आपके बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाना कैसे है, समझाना कैसे है, प्यारे बंधुओं, इसका चयन करना आपकी जिम्मेवारी है। ये निर्भर करता है उस स्कूल के संस्थापक के ऊपर कि उसकी सोच क्या है, वो आपके बच्चे को लेकर कहाँ तक जाना चाहता है। उस विद्यालय के प्रिंसिपल, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने स्कूल के बच्चों को गणित में, हिंदी में, सामाजिक विषयों में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, मेंटल एबिलिटी इत्यादि सब्जेक्ट को लेकर के वह किस बुलंदियों तक स्कूल के बच्चों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, ये इस बात पर निर्भर करता है। प्यारे भाई बंधुओं, आपको सोचने का आज ये समय है। आप सोचें, आप विचार करें कि आप अपने बच्चे को कहाँ भेजेंगे, किस जगह भेजेंगे। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे को भेजें ऐसी जगह पर भेजें जहाँ उस विद्यालय के प्रबंधक का, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य का कोई डिजायर हो, कोई टारगेट हो, कोई एम एंड एम्बिशन हो। आपके बच्चों को लेकर के आप ऐसे शख्सियत के हाथों में अपने बच्चों को सौंपे, निश्चित तौर पर आपका बच्चा आपके सपनों को साकार कराएगा। मुझे पता है आप अपने सपनों को साकार नहीं कर पाए तो आज आप तन मन धन से जुटे हुए हैं, अपने बच्चे के पीछे लगे हुए हैं, अपना पूरा सब कुछ आपने अपने बच्चे पर न्यौछावर कर दिया हुआ है। और मैं उन अभिभावक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अपने बच्चे को इस केटीएस संस्थान को समर्पित किया है, सौंपा हुआ है, क्योंकि उतने बच्चे आज कुछ दिनों के बाद इस देश के, राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका साबित करेंगे, अहम भूमिका साबित करेंगे। ये मैं आज इस केटी स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस के मंच से, इस स्कूल के प्रधानाचार्य होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्यारे बंधुओं, ये सोचने वाला विषय है। आप तय कर लें कि हम अपने बच्चे को स्कूली शिक्षा के साथ साथ बुनियादी स्तर से ही, प्राइमरी स्तर से ही ऐसा ध्यान कराएंगे कि उसे 12वीं पास करने के बाद किसी भी एग्जामिनेशन में अगर वो लड़का बैठ रहा है तो उसे किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसे कोटा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर जाना न पड़े। वह स्कूली स्तर से ही, धरातली स्तर से ही, इसी कप्तानगंज की धरती से, केटी स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस के संस्थान से ही तैयारी कर अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी अभिभावक बंधुओं, सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों
को मैं धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पुरस्कार है। इसके बाद में शिवशांत साल बीतेंगे मगर वो खो नहीं सकती, हमेशा जागने वाली कभी सो नहीं सकती। तुम्हारा मैला मन भले ही मैला कहे उसे, सबके पाप धोने वाली मैली हो नहीं सकती।
मेरे तट पे आज भी गूंजे, मेरे तट पे आज भी गूंजे नानक कबीर की वाणी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे जितने पढ़ने में टैलेंट है, जितना ही मैथमेटिक्स में बच्चे टैलेंट है, उसी तरीके से हर क्षेत्र में बच्चों को आगे होना जरूरी होता है। ये एक्स्ट्रा करिकुलर जो है एक्टिविटी बच्चों के व्यक्तित्व पे, पर्सनालिटी पे चार चांद लगा देती है। तो ये बच्चे बहुत ही अच्छे, बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, जो अपनी स्टडी के साथ साथ जो है इसी में से चंद समय निकाल करके सिंगिंग में भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब इसके बाद में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री ज्ञानेश्वर श्री शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष भी है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आए और चंद जो है शब्द हम लोगों के बीच में शेयर करें। शिवचांद पांडे, ये आपके पापा की तरफ से, इसे भी आप रिसीव करें। प्रधानाचार्य जी के आदेश का पालन करना है। अध्यक्ष एक ऐसा होता है जो बिल्कुल चुपचाप आता और चुपचाप बैठा रहता है। उसी की प्रतिनिधि मैं भी था। आज कुर्सियां भी हैं और हम और कुछ लोग भी हैं। सबसे पहले मैं केटीएस के संस्थापक को धन्यवाद देता हूं। यूं तो संस्था का निर्माण आज आम विषय हो गया है, लेकिन जो संस्था कुछ विचारों को लेकर स्थापित किया जाता है, कुछ मान्य बिंदुओं को लेकर स्थापित किया जाता है, निश्चित तौर पर उस संस्था का अभ्युदय राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसलिए मैं उन्हें सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ इस स्कूल के प्रिंसिपल को जो ऐसे मिशन में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ इस स्कूल के ऐसे शिक्षकों को। धन्यवाद देता हूँ उन कुशल शिक्षिकाओं जिन्होंने ऐसे मिशन को पूरा करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उन प्रतिभावान छात्रों को जो इस मिशन पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अभिभावकों को, उन माता और पिता को जो इस मिशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ इस नगर के संप्रांत गण को और हमारे हृदय के में स्थान रखने वाले परम आदरणीय विजय केदार जी को, छोटलाल जी को, बैठी हुई समस्त अभिभावक को जिन्होंने इस ठंडी कड़ाके की ठंड में आमंत्रण बैठ करके इस विद्यालय के सम्मान को बचाया और बढ़ाए हुए। साथियों, एक दो बात कह के समाप्त करूंगा। शिक्षा का मिशन आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक होता है। जिस शिक्षा में आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक और मानसिक का मिशन ना हो, मनसा वाचा कर्मणा। अभी प्रिंसिपल साहब बीच में कह रहे थे कि शारीरिक का भी में संगीत का भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रिंसिपल साहब ध्यान रखें, मनसा वाचा कर्मणा।
बहुत बड़ा विद्वान है, दिवाचार नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञाता है, लेकिन अगर वाचार नहीं है तो निश्चित तौर पर इस धरती पर कभी उसकी पूजा नहीं हुई, चाहे क्यों नहीं वो आईएएस पर हो। आवश्यकता उसे प्रतिभा की जगह देती है जो इस राष्ट्र को एक समर्पित होकर के इस राष्ट्र को एक मजबूत की संदेश है। और बताना चाहिए इस धरती पर 3 की पूजा होती है, माता पिता गुरु और तीसरा एक संस्कार की पूजा होती है साथियों। जिस शिक्षा में संस्कार को निकाल दिया जाए, जिस शिक्षा में संस्कार को अलग कर दिया जाए, निश्चित वो शिक्षा मृत्यु के समान है। संस्कार एक ऐसी शिक्षा है जो हमारा नहीं, माता पिता का नहीं, अपना नहीं, गुरु का नहीं, राष्ट्र और कुल का सम्मान बढ़ाता है। उस शिक्षा में गंभीरता पैदा करता है, वजन पैदा, उस शिक्षा के द्वारा अपने माता पिता, अपने धर्म, अपने जात, अपने कुल और इससे साथ साथ राष्ट्र का सम्मान शिथिल पर ले जाता है। यूं तो बहुत समय बीत गया, ठंडा की रात है, कहना चाहूं तो घंटों लगेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि केटीएस की एक मिशन है और जो शिक्षा मिशन के माध्यम से चलाई जाए, जैसे सरस्वती स्कूलों की स्थापना कभी हुई तो उसका क्या मिशन था कि हम आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक रूप से उस बच्चे को हम परिलक्षित करेंगे। हमारे आयुर्वेद विद्या यशोबलम ये कहां से प्राप्त होता है? जब हम माता पिता के पैर को छूते हैं। आयुर्विद्या यशोबल पावर नगर समीरा पंच तत्व से बना सजा, ये 5 अंगुली उस बच्चे के सर पर जाता है तो उसे आयु विद्या यशोबल की प्राप्ति हो जाती है। ये विद्या का लक्षण है। ये कहां लोप हो रहा है? ये लोप हो रहा है। मैं नहीं कहना चाहता, मैं शांत हो जाऊंगा। इसलिए मैं सबका नम्रता और सबको अभिवादन करते हुए, इन बच्चों को भी शुभ आशीर्वाद देते हुए, इन अपने संगीत के लोगों को भी बहुत आशीर्वाद देते हुए, और एक बच्चा, ये हमारे बगल में बच्चा अंत तक खड़ा है, इसलिए मैं इसको और इस पूरे बच्चों को 1100 रुपए देकर के अपनी तरफ से सम्मानित। कैसे पुस्तक ले जिससे कि राष्ट्र और उसके परिवेश आप ज्ञाता है, इन जो भी बच्चे कार्यक्रम भाग लिए हैं सबको खरीदे, उन बच्चों को उस क्षेत्र को पहुंचाने में इसकी सहयोग। मैं बैठे हुए अपनी ओर से अनुरोध करूंगा, केवल 2 प्रोग्राम बच्चों का है, उसके बाद हमारे डायरेक्टर के द्वारा जो है इस सभा का समापन होना है। तो जो लड़कियां डांस के लिए रेडी हैं,
में गंगा बहता है, जिस देश में गंगा बहता है। पनघट का पानी भरेगा दरिया कोई दीवानी, ठंडी ठंडी पुरवाई में मीठी मीठी खुशबू, मत पूछो उस खुशबू में होता है कैसा जादू। जादू ऐसा होता है कि हर कोई झूमता रहता है जिस देश में कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती लै दे सोहणिया, मैं कहना कोरिए ना 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 कोरिए, ओ गल झुमके नूं तरसदे रह गए सोहणिया, मैं कहना कोरिए ना 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 कोरिए। कुछ मेरे कोल प्यार होइए मेरा गरीबन तू ना दिए, कुछ मेरे कोल प्यार होइए मेरा गरीबन तू सारी दुनिया में कहंदी बगले पे के सोहणिया, मैं कहना कोरिए ना 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 कोरिए। कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती लै दे सोहणिया, मैं कहना कोरिए ना 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 कोरिए। कुड़ी मैनू कहंदी अपनी डांस को लेकर के सत्य पांडे आ जाए। ये रिवार्ड अपना लीजिए। I promise that in the achievement development of my country with this goal and my strive is to become a dance. Let's start. हिसाब में हम जो करने चले गलती वो जोड़ लो। तो आज कुछ लोगों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो। आज हल्की से दुनिया को भूल के जितने हैं कायरे वो सारे तोड़ दो। हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के चेंगे हीरो बन कर जय जय शिव शंकर बूढ़े भयंकर बूढ़े दो बूढ़े दो आए बंदे शंकर के बूढ़े भयंकर बूढ़े दो जय जय शिव शंकर
Satyam Pandey, come and receive your award. A very teacher. कन्हैया सर द्वारा भी सत्यम पांडे को 100 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री रुपेश सिंह जी की तरफ से सत्यम पांडे टेक योर 200 रुपये का पुरस्कार है। टेक योर प्राइज। सर्वप्रथम इस कड़ाके की ठंडी में जितने लोग बैठे हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि जी, मेरे परम मित्र श्री विजय खेतान जी, पूर्व चेयरमैन श्री छोटे लाल गरहरी जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रामेश्वर प्रजापति जी, समस्त शिक्षक। कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, बस 2 चीज मैं कहूँगा। उसके पहले मैं विगत वर्ष में हमारे जो शिक्षकों ने अच्छा कार्य किया है उसके लिए शिक्षकों को भी पुरस्कृत करने की योजना है। इसके लिए मैं आहूत करना चाहूँगा श्री विजय खेतान जी को, श्री छोटे लाल अग्रहरी जी को, दोनों लोग आए मेरे शिक्षकों को पुरस्कृत करके उनका उत्साहवर्धन करें और सहयोग करेंगे श्री वीरेंद्र सिंह जी। दोनों लोगों को लेकर आए श्री वीरेंद्र सिंह जी, और मैं बोलता जाऊँगा। और मेरे शिक्षकों को पुरस्कार देना है तो कहीं कहीं बच्चों से ज़्यादा गुरुतर कार्य है। सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय को पुरस्कृत करना चाहूँगा। श्री रामेश्वर प्रजापति जी आए। साथ ही मैं अगला नाम बुलाना चाहूँगा श्री नवल किशोर पांडे जी को, वो आए। और कॉल करना चाहूँगा, आए। ये इंग्लिश के ओरेटर हैं, इनको 24 घंटा नहीं 48 घंटा भी दे दिया जाए तो इंग्लिश में बोलते रहेंगे, थकते नहीं हैं। इसके बाद मैं आउट करूंगा श्री अभय सिंह सर को, आए। ये हिंदी के ओरेटर हैं, इनको भी समय की बंधन और सीमा न रहे तो 24 घंटा बोलते रहेंगे। श्री अभय सिंह सर आए और अफसर आ चुके हैं। और अंत में मैं राजकुमार सर को आहूत करना चाहूँगा, वो आए आगे से आए। और राजकुमार सर भी अपना एक प्राइज दिए हैं। अब विद्यालय जब से खुला हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। हमारे मित्र राजेश उपाध्याय कप्तानगंज नगर में मुखिया मेरे ख्याल से स्कूल की यहाँ बहुत जो आपकी सोच है उस टाइप का स्कूल नहीं है। रही बात, मैं सीधे इसलिए कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय भी घर गए, जगह इधर उधर न करके विद्यालय परिवार व व्यवस्थापक अध्यापक अध्यापक कुछ कहने को बचा नहीं है। लेकिन एक चीज ये है कि कप्तानगंज एक शिक्षा का हब बना हुआ है और उस हब में मेरे ख्याल से कप्तानगंज दर्जनों स्कूल चल रहे हैं। ये भी कप्तानगंज का सौभाग्य है कि स्कूल चल रहे हैं, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यहाँ रहने वालों की संख्या बढ़ रही है। और एक चीज और है, कहीं कोई जाएगा बच्चा पढ़ के कोई बताएगा जरूर कि हम कप्तानगंज में किस स्कूल को पढ़ने वाले हैं, इसलिए भी कप्तानगंज नगर का उस नाम तो होगा ही। रही बात विद्यालय की, जो पढ़ा रहे हैं किसी विद्यालय में नहीं, भाई ट्रेनिंग सेंटर टाइप के ये कोचिंग करा रहे हैं। आपको कहीं दिल्ली, बम्बई या कोटा, लखनऊ आप कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और सुदूर इलाके में, पिछड़े इलाके में जो इन्होंने सोचा है वो हम लोग और गौरवित करने वाला हम लोग के बीच में है। आपके पिताजी से भी हमारे संबंध बहुत थे, हमको भाई बहुत पसंद है। तो इससे अभी मैं कोई समय है नहीं, ठंडक अधिक है, अपनी गाड़ी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद। इस एनुअल फंक्शन में आपने
इस विद्यालय की जो नींव आपने रखी, आपकी सोच, इस परिवार की जो सोच रही, जो बच्चे इंटर करने के बाद या बीए करने के बाद इस शिक्षा को ग्रहण करते थे, उनके अभिभावक अपने बच्चों को सुदूर बेचने के लिए सोचते थे कि मेरा बच्चा कहाँ हम इसको पढ़ावें कि आने वाले समय में मेरा बच्चा भी कहीं अच्छी नौकरी पावे। लेकिन इस प्राइमरी स्कूल के तर्ज पर आपने जो शिक्षा का बीड़ा जो उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है। वो हम लोगों को भी गौरवान्वित करती है कि अपने बीच में हमारे मित्र जो आज इस केडीएस स्कूल के डायरेक्टर हैं, इतनी अच्छी सुविधा, इतने अच्छे टीचर आपने यहाँ मंगा रखे हैं, जिनकी शिक्षा के द्वारा इन बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। मैं सर्वप्रथम अपने एक स्कूल के डायरेक्टर, अपने मित्र श्री राजेश उपाध्याय जी, श्री मुकेश उपाध्याय जी और परिवार का मैं बहुत आभारी हूँ। और जो आज इस स्कूल में जो शिक्षक जो शिक्षिकाएं अपनी सेवा दे रहे हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों के द्वारा इन नन्हे मुन्ने बच्चों को भविष्य सुधारने का जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। मैं आगे बहुत कुछ न कहते हुए मैं अपने मित्र को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी सोच बहुत ही ऊंची है। भगवान करे इससे भी ऊंची आपकी सोच हो, जिससे कप्तानगंज का नाम उज्जवल हो और आगे इस क्षेत्र में जिसके भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके द्वारा एक संदेश जाए कि कप्तानगंज में एक केटीएस स्कूल इन बच्चों को भविष्य को सुधारने के लिए अपनी प्रेरणा, अपना सब कुछ जीवन दांव पर लगा के उन बच्चों को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। हम लोग ने सुना, ठंडा का मौसम है, मैं कुछ बहुत नहीं कहना चाह रहा हूँ। इस केटीएस के संस्थापक स्वर्गीय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी, जो मेरे बहुत परम पूजनीय पिताजी रहे हैं और उन्हीं के प्रेरणा से स्थापना हुआ है। पिछले अवार्ड में उनकी उपस्थिति हमको बहुत आशीर्वाद प्रदान करती थी। आज उनकी कमी मुझे खल रही है और यह कमी अनवरत खलती रहेगी, लेकिन ऐसी नींव रख दिए हैं कि हर साल उनका याद हम लोग करते रहेंगे। सभी शिक्षकों का, अपने प्राचार्य का, अपने मित्रों का, बच्चों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। से आप सभी लोगों को मिल रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है और हम चाहेंगे कि आप सभी इसी तरीके से अनवरत ऊर्जावान होते हुए आप काम करें, संस्थान को आगे की तरफ ले जाए। अब मैं नेशनल एंथम की तरफ चलेंगे, सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और मैं चाहूंगा अभिषेक सर प्लीज कम हियर।